all of us, as you can see, gorgeous even more. The man who has taken care of not just the outer beauty but also made sure that we feel beautiful and gorgeous from inside. Every queen over here has been makeovered by our very own makeover partners, Chirag Bambo. We are conducting Mrs. India INC 2022, and as we all know, the winner will have an opportunity to go and represent India at Mrs. World. It was 20 years back in 2001 when India won the Mrs. World title, and we have the winner right here standing with us. And it's been 20 years since we are waiting for another title. Hopefully we'll have the winner tonight, who'll win the title and get the glory back to the nation. So yes, here she is, and we are in a hunt for our next Mrs. India. Aditi, over to you. Thank you so much, Mohini. So a very warm welcome to all you people. I hope you enjoy the show. The contestants are fantastic, and the reason why I joined hands with Mohini is for the very same reason, that it's 21 years. It's high time we bring the crown back, because you know what? This responsibility now I am done with. That's why I'm here. I'm going to help the winner. I'm going to train her, mentor her, so that she can bring this country. I think it's very, very important, this event, because like I said, that we, Mohini and I both, we want to bring the crown back, because it's been 20 years. We have many Miss Worlds, Miss Universes, but we don't have any other Mrs. World. So it's time, and why not? I mean, we have such beautiful misses in our country, so it's time that we bring the crown back. So this event is extremely important to me. Lessons and Any tips? Well, I have been sharing the tips with them all the time. Even before coming here out right now, I was talking to them because obviously they are nervous, they're anxious. So I help them calm their nerves down. So that's pretty much what I've been doing in the last few days when we were training them. Well, there are a couple of other OTT series that are in the pipeline. One will release in September and one will release next year. Aditi, there was a time, अभी क्या कुछ changes you can see आज के time पे the entire fashion industry? Well, it's changed completely, क्योंकि जब मैं गई थी इस पैजेंट में तो तभी किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा पैजेंट एग्जिस्ट करता है. हालांकि ये पैजेंट 1984 से चला आ रहा है, लेकिन हमारे भारत देश में तभी शादीशुदा तो की बात छोड़ो, लेकिन कोई रिलेशनशिप में भी रहता था तो वो भी वो क्वाइट रखते थे, वो आते नहीं थे बाहर बिकॉज ऑफ दैट इमेज के एक बार आप रिलेशनशिप में हो या शादी हो गई मतलब ग्लैमर फील्ड में आपका करियर ख़त्म. तो मुझे वो जो परसेप्शन था, वो स्टीरियोटाइप था, वो मुझे चेंज करना था. तो जब मुझे मिसेस वाडिया, नौरीन वाडिया ने कहा कि तुम्हें जाना है, सो आई सेड यस, व्हाई नॉट, बिकॉज क्यों ऐसा होना चाहिए कि आफ्टर गेटिंग मैरिड अ वुमन शुड नॉट हैव. What is that one thing you're looking forward in judging when you're going to be judging our queens tonight? I think all these ladies have come with so much enthusiasm and confidence, and I think Mohini's done a phenomenal job by giving a platform to so many women who have so many aspirations. They want to come out there and shine like the stars they are. So I think that's something amazing that you've done, Mohini. How are you? So क्या कहना चाहेंगे मिसेस के लिए जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज को भी जोड़ा गया इसके साथ साथ, क्या कहना चाहेंगे? दोबारा सारी चीज़ें हिंदी में. यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज. मुझे लगता है कि मोहिनी जी ने और उनके जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने एक मंच दिया है इतनी सारी औरतों के लिए, अपनी जो उनका एक बचपन का सपना है उसे पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए, अपनी भीतर के जो टैलेंट्स हैं उस टैलेंट को एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो चमक सकती हैं, जहाँ पे वो सितारे बन सकते हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग. लेकिन मेरे दिल को सबसे ज़्यादा जो अजीज़ बात है, जो छूती है, वो ये है कि मोहिनी जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था जो है कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, जो पिछले 20 साल से हमने कई हज़ारों लाखों बच्चों की मदद की है जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं और बहुत
मध्यम वर्गीय से भी नीचे तबके के हैं, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, उनकी हमने मदद की है। और इस मदद में, इस मुहिम में मोहिनी जी और आज की सारी जो ब्यूटी क्वीन्स हैं, जो सारी कंपेटिटर्स हैं, अभी से नहीं बल्कि पिछले 4 साल से हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहने के लिए कि पिछले 4 साल में आपके माध्यम से, आपके सारी कंपेटिटर्स के माध्यम से हमने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के लिए 3 करोड़ रुपए रेज़ किए हैं। और इस पैसे से 350 से ज़्यादा नन्ही जाने जिनको कैंसर है, गरीब घर के किसानों के बच्चे, उनकी मदद हुई है, उनकी जानें बचाई गई हैं। सो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। और कहा जाता है कि शादी के बाद औरतों का जो करियर है वो खत्म हो जाता है, थोड़ा हो जाता है, लेकिन आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया मिसेस के लिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको किसने इंस्पायर किया? सो कहा जाता है कि आपके पास 2 ज़िंदगी होती है और दूसरे का एहसास तब होता है जब आपको पता चलता है कि आपकी एक ही ज़िंदगी है जो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो बस मिसेस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि उनका एक्सपीरियंस और उनका एजुकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ हो सकता है। तो यहाँ पर ही वो ये अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज़ करती है। मोहिनी जी ने जैसे कहा अभी मिसेस के बारे में कि 2 ज़िंदगियाँ होती हैं, मेरा ये मानना है कि हर लेडी के 2 ज़िंदगी के अलावा 2 करियर भी होते हैं। और एक करियर ये होता है घर संभालना, गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालना। जब कोविड हुआ था बीच में, तो मेरे लिए जीवन में पहली बार एहसास हुआ और अप्रिसिएशन हुआ कि प्रियंका मेरे घर में कितना कुछ संभालती है। क्योंकि जब मैं घर पे था तब मुझे सारी चीज़ें नज़र आने लगी कि कितना बिजी रहती हैं, बच्चों को किस तरह से सही संस्कार, सही वैल्यूज़ के साथ में बड़ा करना, उनको प्यार देना, एक सुंदर घर का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। औरतें जो हैं वो मर्दों से डबल मेहनत करती हैं और मुझे लगता है ये मंच एक अप्रिसिएशन है उस बात का। सारी मिसेस जो हैं उन सबको मेरी तरफ से सल्यूट है। और जब ब्यूटी के अलावा हम इनर ब्यूटी पे फोकस करते हैं, जिनका सिर्फ चेहरे ही नहीं सुंदर हैं बल्कि दिल भी सुंदर हों, जो एक्चुअल दूसरों के गरीब बच्चों के लिए, कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए इतना अच्छा पहल जो उठा रहे हैं, तो उनके लिए आई विश देम नॉट ओनली बेस्ट ऑफ लक फॉर टुनाइट्स कॉम्पिटिशन बट बेस्ट ऑफ लक इन लाइफ। गॉड ब्लेस। शादी के बाद लड़की का करियर खत्म हो जाता है, आज जो है आप शो को जज करें जहाँ पे जो घर की गृहिणी है वो यहाँ पे आने वाले कितने एक्साइटेड है उनको? नहीं, अभी देखिए मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत दिन के बात करूँ, इससे पहले मैं मिस इंडिया का मैं 2000 में किया था, बट मुझे एक सुनहरा मौका है कि मिसेस इंडिया को जज करने का। तो मैं समझता हूँ कि किसी का करियर कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये तो पब्लिक का परसेप्शन होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि बस चलो शादी हो गई तो करियर ख़त्म हो गया, उसका मतलब है अगर क्रिकेट प्लेयर की शादी हो गई तो खेलना नहीं चाहिए, तो सेम थिंग। नो, आई थिंक मैसेज यही दूंगा कि मैं मैं समझता हूँ कि लोग अच्छे वेल प्रिपेयर्ड होंगे और जो भी अच्छा क्वेश्चन आंसर करेगा, आई थिंक दोनों भी ब्यूटी एंड ड्रिंक मोर इम्पोर्टेंट है। I'd also like to just ask you, your association with Mrs. India INC, how has it been over the last few years? It's been lovely, because again, as someone who, I constantly dream and my dreams evolve with every year. So just a platform like Mrs. India that supports the dreams of married women and helps them to achieve, whatever it is, because they get a platform, whether or not they go on to become Mrs. India, they achieve a certain amount of celebrity in their own right and a platform for them to speak for things that matter to them. And for that reason, I think it's a wonderful competition to be associated with. And it's my 3rd year as a judge. And it was very exciting in the past 2 days, whether it was Naveen or whether it was Rashi. So I'm excited to see who's going to wear the crown this year. Absolutely, and we are too. Any questions from the media? जज करने के लिए कितने एक्साइटेड है और क्या क्वालिटी देखने वाले हैं आज? आई थिंक कि जज करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये मेरा 3रा साल है एज अ जज इन मिसेस इंडिया और बहुत लोगों को लगता है कि शादी करने के बाद शायद आपके सारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाते हैं और फिर आप अपने हस्बैंड, अपने फैमिली, अपने बच्चों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने बारे में स्पेशली वुमेन कम सोचना लगते हैं। सो आई माई सेल्फ हैव बीन गिल्टी ऑफ दैट। तो इसीलिए यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन मिसेस इंडिया जो मैरिड वुमेन की ड्रीम सपोर्ट करती है
उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट. इन टर्म्स ऑफ कौन होगा मिसेस इंडिया, आई एम एक्साइटेड टू मीट द कंटेस्टेंट्स एंड आई नो दैट the women will be, it will be challenging because always the women are, it's always very very difficult. I'm very glad कि मैं अकेली जज नहीं हूँ, और भी जजेस होंगे और हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके बीच में बांटना होगा. मैम क्या क्वालिटी देखने वाली है आप? आई थिंक कि एक क्वालिटी जिसका हम उसे नाम नहीं दे सकते हैं. इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, खूबसूरत होना ज़रूरी है, और खूबसूरत का मतलब है कि अट्रैक्टिव क्वालिटी, जहाँ पे आप उस शख्स को देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं. आई थिंक दैट काइंड ऑफ क्वालिटी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं. और एक चाह, कुछ एक ज़िद, वो अपने लाइफ के साथ कुछ करना चाहती है, अपने आप को साबित करना चाहती है, वो एक उनमें दिखना चाहिए. Thank you so much. We will be waiting for my ma'am very very soon. It has been a routine now. It has been a routine now, and I think show feels like incomplete if Soha is not there. And as I mentioned, कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि ऐसी महिलाएं होती हैं जो ऐसा कुछ हासिल कर लेती हैं जिससे आने वाली औरतों को, आने वाली यंग जनरेशन को इंस्पिरेशन मिलता है. एंड आई थिंक सोहा इज़ वन ऑफ दैट इंस्पिरेशन, वन ऑफ द पर्सनैलिटी जिनको देख के हम सीखते हैं. आई थिंक वी नीड आई थिंक ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है. मेंटली फिट, इमोशनली फिट, फिजिकली फिट, उससे मुझे तो खुशी भी मिलती है. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. थैंक यू. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.